اب اگر ایران یہ تسلیم نہیں کرتا کہ وہ جنگ ہارا ہے تو ٹرمپ کے لیے بڑی مشکل ہے. تو اس کے لیے ٹرمپ نے بڑی کوشش کی ہے اور بڑے پیمانے پر ہتھیار اس وقت بھی اسرائیل میں پہنچائے جا رہے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو رپورٹ آئی ہے بین الاقوامی میڈیا میں وہ یہ بتاتی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بحری جہازوں اور کارگو جہازوں کے ذریعے 6500 ٹن فوجی ساز و سامان اور ہتھیار اسرائیل میں پہنچے ہیں. یعنی اتنے بڑے پیمانے پر ہتھیار پہنچ رہے ہیں. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ایران ہار تسلیم کرے, میں بڑے مارجن سے جنگ جیتنا چاہتا ہوں. دوسری طرف نا دو بیانات اور ہیں. ایک بیان ہے ایرانی صدر کا اور ایک بیان ہے ایران کے سپریم لیڈر کا. یہ دونوں بیان بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان کو آپ سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایران اب کس طرف جائے گا. یعنی یہ تاثر بن رہا ہے نا کہ ایران اپنے ہرمز کو چھوڑ دے گا, ایک وقت آئے گا, یا ایران ایٹمی معاملات کے اوپر ایک معاہدہ کر لے گا جیسا امریکہ چاہے گا, یا چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. وہ ایران کے دماغ میں یہ فارمولا نہیں چل رہا. ان کے سٹیٹمنٹ سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں پہلے تو آپ ایرانی صدر کا لینا. وہ یہ کہتے ہیں, اور انہوں نے اس کے اوپر نا بڑا سخت رد عمل دیا ناکہ بندی پہ. انہوں نے کہا جی کہ امریکی بحری ناکہ بندی فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے. اس ظالمانہ طرز عمل کا تسلسل ناقابل برداشت ہے. دنیا ایران کے صبر اور مفاہمت کی گواہ ہے کہ ایران نے پوری کوشش کی. بحری ناکہ بندی کی آڑ میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ایک ایسی قوم کے خلاف فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے جو اپنی مزاحمت اور آزادی کی قیمت ادا کر رہی ہے. اس ظالمانہ طرز عمل کا تسلسل ناقابل برداشت ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایران اس ناکہ بندی کو ختم کرنا چاہتا ہے. ذرا آپ یہ دیکھیں کہ جو مشتبہ خامنہئی کا سٹیٹمنٹ ہے, میں نے اس کے اہم پوائنٹس نکالے ہیں. 5 بڑے اہم پوائنٹس ہیں جو مشتبہ خامنہئی, کیونکہ دیکھیں وہ انہیں چوٹ لگی ہوئی ہے, وہ زخمی ہے, اور جہاں پہ وہ موجود ہیں وہاں پہ کوئی جاتا نہیں ہے. ان کی اپنی لیڈرشپ بھی ان کے قریب نہیں جاتی. کوئی ان کے پاس جانے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتا کہ ان کی لوکیشن پتہ چل جائے گی. تو بہت پرانا ایک طریقہ ہے رکہ بازی. وہ وہاں سے ایک رکہ لکھ کر بھیجتے ہیں, وہاں سے ان کو بھی تحریری طور پہ بھجوایا جاتا ہے صورتحال, وہ وہاں سے پڑھتے ہیں اور ان کو انفارمیشن ملتی ہے اپنے سورسز سے, اور وہ پھر تحریری طور پہ اپنا پیغام بھجواتے ہیں. وہ اپنی آڈیو پیغام بھی نہیں بھجواتے, کسی ریڈیو کا استعمال بھی نہیں کرتے کہ کسی جگہ پہ ریڈیو کے ذریعے سے بھی اگر ان کی آواز ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے تو ان کی لوکیشن کا پتہ چل سکتا ہے. تو وہ اپنی لوکیشن کو بہت خفیہ رکھا ہوا ہے, اور اس وقت وہ زخمی ہے. ان کے پاس طبی عملہ بھی ہے بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق. جو چیزیں انہوں نے کہی نا, ان میں 5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ان کا لیٹسٹ ایک پیغام آیا ہے ایرانی قوم کے نام اور ایران کے لوگوں کے نام. انہوں نے کہا کہ آبنہ ہرمز ایران کا ایک اسٹریٹجک اثاثہ ہے. یعنی یہ ناقابل مذاکرات ہے, اس پہ تو وہ بات نہیں کریں گے, وہ اس کو اپنا اسٹریٹجک اثاثہ کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا خلیج فارس کے مستقبل کا تصور امریکہ کے بغیر ہے. یعنی یہ سارا جو انہوں نے بیان دیا اس میں امریکہ کا خلیج فارس میں کوئی رول نہیں ہے. یہ ان کے سٹیٹمنٹ کے بیچ میں سے ایک نقطہ یہ ہے. ایک نقطہ ان کے پیغام میں یہ ہے کہ آبنہ ہرمز کا انتظام ایران کے ہاتھوں میں ہے اس وقت, اور ایران خود مختار فیصلے کرے گا. اور ایک اور نقطہ جو ان کے اس پیغام سے نکلا وہ یہ ہے کہ آبنہ ہرمز کے جو معاشی فوائد ہیں وہ مستقبل میں ایرانی عوام تک پہنچائے جائیں گے. یعنی وہ اس کو اب ایک نہ صرف اسٹریٹجک اثاثے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہم پیسے کما کے اپنی قوم پہ لگائیں گے. تو وہ تو اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آبنہ ہرمز کو وہ نہیں چھوڑیں گے, جیسا کہ کل امریکی پروفیسر نے کہا تھا کہ ایران پاگل ہی ہوگا اگر آبنہ ہرمز کو چھوڑے گا. اب وہ اس کو نہیں چھوڑے گا اور وہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا. پھر ایک چیز اور ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایٹمی اور میزائل ٹیکنالوجی قومی اثاثہ ہے, یعنی یہ ناقابل مذاکرات ہے. یہ ہیں وہ اہم چیزیں جو مشتبہ خامنہئی نے کہی. تو اس طرح تو مذاکرات نہیں ہوتے. جو ڈونلڈ ٹرمپ مانگ رہا ہے یہ تو اس کے بالکل الٹ ہے, اور یہ بڑے سخت گیر ان کے نظریات ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ نہیں ملتا, تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ وہ ایک حملہ کر سکتا ہے دوبارہ. اگر وہ ایک دوبارہ حملہ کرے گا, اپنی جیت کی اناؤنسمنٹ کرے گا اور لڑائی کو ختم کرے گا, تو کیا یہ ممکن ہے؟ ایران نے اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ دیا ایرانی فوج نے, اور جو ان کا پورا فضائی حملوں کا ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ اگر امریکہ نے اور اسرائیل نے ہمارے اوپر محدود حملہ کرنے کی بھی کوشش کی تو ایران جو ہے اس کے اوپر بھرپور جوابی حملہ کرے گا اور طویل جواب دے گا. یعنی ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اب چھوٹی لڑائی نہیں لڑیں گے, لڑائی ہوگی تو ہم پوری لڑائی لڑیں گے, فل فلیج. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ کیپیسٹی ہے کہ ابھی وہ ایک لمبی لڑائی لڑ سکتے ہیں. کالی باف نے ایک نقشہ جاری کیا اور نقشے کے ساتھ ایک امریکی پروپیگنڈے کا جواب دیا. امریکہ نے کہا کہ ہم ایران کو گھیرا ڈال رہے ہیں, چاروں طرف سے ایران کو گھیر رہے ہیں. تو اس پہ کالی باف نے کہا کہ اگر آپ امریکہ میں 2 دیواریں بنائیں نا, مشرق سے لے کے مغرب تک, یعنی اٹلانٹک اوشین اور پیسیفک اوشین, ان کے بیچ میں آپ 2 دیواریں بنائیں امریکہ کے گرد, تو وہ جتنی لمبی دیواریں بنتی ہیں نا ان سے بھی 1000 کلومیٹر لمبی ہماری سرحد ہے ایران کی.
साथ ही उन्होंने कहा गुड लक ब्लॉकिंग अ कंट्री विद दोज बॉर्डर्स, कि इतनी लंबी सरहदों वाली एक मुल्क को आप ब्लॉकेज करना चाहते हैं, उसको घेरना चाहते हैं, तो गुड लक, करके देख लें आप। फिर साथ ही जो है वो उन्होंने पीट हेग्सेथ जो अमरीकी वजीर दिफा है उनके लिए लिखा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62 माइल, यानी इसकी आसानी के लिए बता दिया कि जनाब आपको आसानी के लिए बता दूं कि आपके मील चलते हैं तो किलोमीटर में और मील में इतना फर्क होता है। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप ईरान का घेरा डाल लेंगे, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है। और यही बात तमाम दिफाई माहिरीन बार बार समझाते हैं, बार बार ये बात बताते हैं कि ईरान रकबे के लिहाज से इतना बड़ा मुल्क है कि इतना आसान नहीं है कि आप उसको चारों तरफ से घेर के उसके ऊपर कोई अटैक कर दें और आप मुकम्मल तौर पे उस पर कब्जा कर दें। वहां पे 3 करोड़ लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है लड़ाई लड़ने के लिए। भाई 2, 4, 10, 20, 50 हजार लोग हों या 1 लाख 2 लाख लोग हों तो अलग बात है, वहां 3 करोड़ लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। वो पूरी कौम ही जंग के मोड में आ गई है और आयतुल्लाह अली खामनई ने अपनी कुर्बानी देके पूरी कौम को खड़ा कर दिया। अब सूरत हाल आपके सामने। नाज़रीन, नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया है और अपनी बहरिया को शाबाश दी है कि उन्होंने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को वापस धकेल दिया। ये वो कारकुन है, इंसानी कारकुन, जो गजा जाना चाहते हैं इंसानी इमदादी सामान लेकर, लेकिन इन्हें इसराइली फौजियों ने घेर लिया था, इन्हें पकड़ लिया था, इनकी मवासलाती निज़ाम बंद हो गया था, इनसे राब्ते भी मुनक़ता हो गए थे और ये काफ़ी अलग अलग मुल्कों से लोग हैं। इसके ऊपर एक मुज़म्मती स्टेटमेंट भी कुछ ममालिक ने जारी की है जिनमें उर्दन, स्पेन, पाकिस्तान, लिबिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, तुर्की, जनूबी अफ्रीका, कोलंबिया, मालदीव, मलेशिया वगैरह शामिल है। तो इन्होंने इसके ऊपर एक मुज़म्मती स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि यह पुरअमन शहरियों का इंसानी इकदाम है जिसका मकसद गजा में जारी नस्लकुशी का आलमी तवज्जो उस तरफ लेकर आना है कि यहां पे नस्लकुशी हो रही है। इन्हें हिरासत में लेना गैर कानूनी है, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, काफी हमें तशवीश है, इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। लेकिन मैं आपको एक अजीब चीज बताऊं कि उर्दन के अलावा किसी भी अरब मुल्क ने अभी तक इस मामले में इसराइल के खिलाफ मजम्मत नहीं की, जबकि यहां जो यूरोपीय ममालिक हैं उनमें से भी सिर्फ स्पेन का नाम सामने आ रहा है। और स्पेन में आपको बताता हूं ये वो मुल्क है जहां से ये काफिले रवाना हुए थे। मैं उस दिन स्पेन में था, मैंने खुद ये काफिले रवाना होते हुए देखे वहां से, जब ये मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोग रवाना हो रहे थे और ये जा रहे थे गाजा की जानिब। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और खबर यह है कि ईरान अपने फुटबॉल मैचेस, ये फीफा के सदर हैं, उन्होंने कह दिया कि वो अपने फुटबॉल मैचेस अमेरिका में खेलेगा क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है जून के महीने में। मेरे ख्याल में 16 जून को पहला मैच है ईरान का, उसके बाद 21 जून को है, उसके बाद 27 जून को है। तो इस तरह ईरान के मैचेस हैं और ईरान जो है वो जी पोल में है गालिबन, वहां पे 3 टीमों के साथ ईरान के 3 मैचेस हैं। तो ये ईरान जो है वो अपने फुटबॉल मैचेस अमेरिका में खेलेगा। ये इस दफा जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये अमेरिका में, कनाडा में और एक मैक्सिको में ये वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, फीफा वर्ल्ड कप। और आज से 1-2 महीने के बाद ये शुरू हो जाएगा, फिर पूरी दुनिया को फीफा का बुखार चढ़ जाएगा। वो आपको पता है दुनिया में कितना मकबूल है ये खेल। नाज़रीन, एक और चीज, अमेरिका का जंग में अब तक खर्चा कितना हुआ, तो ये CBS की एक न्यूज आई है, ये अमेरिकन मीडिया है, इन्होंने बताया कि अमेरिकी ऑफिशियल्स अब ये बता रहे हैं कि ईरान जंग में अब तक जो नुकसान हुआ अमेरिका का, या जो खर्चा हुआ सारा, जो कॉस्ट पड़ी अमेरिका को इस जंग की, वो $50 अरब है। इससे पहले पेंटागन ने $25 अरब के करीब बताया था, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि $50 अरब है क्योंकि तबाहशुदा साजो सामान, बेसेस और जो असासे अमेरिका के तबाह हुए हैं, इन सबको अगर आप मिलाएं तो लगभग $50 अरब का अमेरिका का नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका का हुआ इस जंग में। गिरफ्तारियां भी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बड़े पैमाने पर हुई। गिरफ्तारियों के हवाले से जो आदाद शुमार हैं वो अलग अलग किस्म के आ रहे हैं। हुकूमती जराए अलग हैं, पुलिस के जराए अलग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम अलग है। लेकिन ये किसी सूरत भी अगर आप इसको कहीं पे बीच में इन बिटवीन भी आप देखें तो ये 1200 से ज्यादा कारकुन कम से कम पंजाब में गिरफ्तार किए गए, जिनमें 250 से ज्यादा का दावा किया जा रहा है कि ये लाहौर से गिरफ्तार किए गए। तो इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां तो कभी, यानी जितने बंदे पीटीआई के गिरफ्तार हो गए इतने बंदे तो आजकल PMLN के जलसे में नहीं होते। जितने बंदे पीटीआई के 9 मई से अब तक गिरफ्तार हो गए, इतना बड़ा जलसा तो नवाज शरीफ ने अपनी सारी जिंदगी में नहीं किया होगा। अगर 9 मई और उसके बाद जो 26 नवंबर को जो गिरफ्तारियां हुई ना, ये 20-25 हजार बंदा, ये बंदा इकट्ठा करने की जगह पे तो एक बहुत बड़ा हुजूम बन जाता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हो जाते हैं। इतनी गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई हैं कि जितने बंदे किसी बड़े से बड़े जलसे में ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं निकाल सकती, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करके दिखाया और बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने करके दिखाया। गंडापुर साहब के साथ नाज़रीन बहुत बुरी हुई है। गंडापुर साहब रैली के साथ आए और मैंने जो सहाफी वहां पे मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने क्या देखा। इवन एक तो पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे भी मैंने पूछा, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ये उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो
उन्होंने मुझे क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी गंडापुर साहब मौजूद जरूर थे, वो एक्टिविटी कर रहे थे और पॉलिटिकली एक वो फिगर है, लेकिन गंडापुर साहब को पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी उस तरीके से जैसे उन्हें किया जाता है। सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत उनका शबशबा चल रहा था, लेकिन गंडापुर साहब ने जब तकरीर की तो उनकी तकरीर टोटल जो है वो 1.25 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में थी। उन्हें भी आइडिया हो गया था कि देखिए लीडर को मजा तब आता है जब वो बात कर रहा हो और लोग सुन रहे हो। साउंड सिस्टम था उनके पास, अगर सामने 10-20 हजार लोग खड़े हो जाते तो वो उनसे बात कर सकते थे, लेकिन लोग गंडापुर के कंटेनर के इर्द गिर्द आए, उनकी दिलचस्पी गंडापुर में से खत्म हो गई थी। तो गंडापुर साहब को यह सोचना चाहिए था अपने पांव पे बार बार कुल्हाड़े मारने से पहले कि वो कुर्बान क्या चीज कर रहे हैं और किस चीज के लिए कर रहे हैं। वजारत आला के लिए अपनी सारा सियासी करियर, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। लोगों में एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी कि इस आदमी की ब्रेक उस जगह पे आके लगती है जहां इमरान खान साहब बुलाते हैं। ये हमेशा इमरान खान की आवाज पे लब्बैक कहता है, हमेशा पहुंचता है और जबरदस्त एहतजाज करता है और बड़ी अच्छी टीमें लेकर आता है। तो आज उन्हीं टीमों की गंडापुर साहब की तरफ लगता है तवज्जो ही नहीं थी। वो आए, उन्होंने तकरीर की 1.25 मिनट की, 1.5 मिनट की, वो भी कोई खास बात उन्होंने नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जो काबिल जिक्र हो मैं आपको यहां पढ़ के सुनाऊं। लेकिन फिर गंडापुर साहब निकल गए तो कारकुन उनकी गाड़ियों के आगे आ गए। बाद में उन्होंने कहा जी किधर जा रहे हैं आप हर दफा में लेकर आते हैं और वापस हमें निकल जाते हैं, या वापस ना जाए, आपको ऐलान करें, कुछ चक्कर चलाएं। कारकुन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे जो पीछे से आ रहे थे, उन्होंने रास्ते रोक लिए। हो सकता है शरारत कर रहे हो, लेकिन फिर गंडापुर के जो गार्ड्स हैं उन्होंने कारकुनों को धक्के शक्के देके रास्ते खोले और फिर गंडापुर साहब सीएम हाउस के लिए रवाना हो गए। तो गंडापुर साहब ने जो कहा था ना कि 3 माह में अपनी सियासत छोड़ने का जो उन्होंने फैसला किया था कि अगर मैं इमरान खान को ना निकाल सका 3 माह के अंदर तो 1 महीना तो गुजर गया, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, सियासत का अपनी फैसला कर दूंगा, फिर मुझे कोई हक नहीं है। तो अपने आप को जो डेडलाइन गंडापुर साहब ने दी हुई थी ना, तो लगता है ऐसा ही है कि 3 माह में गंडापुर साहब को इसमें फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आसार नजर आ रहे हैं कि अगर गंडापुर साहब ने खुद फैसला ना किया तो जिस तरह की उन्होंने सियासत की है, इस सियासत की मौजूदगी में लोग उनका फैसला कर देंगे। देखिए ना, फजल रहमान के भाई ने गंडापुर साहब का चैलेंज कबूल किया हुआ है। चैलेंज गंडापुर साहब ने किया था कि मेरा भाई इस्तीफा देता है, फजल रहमान तुम आकर उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ो। तो फजल रहमान साहब के भाई ने कहा कि मेरा बड़ा भाई क्या लड़ेगा, मैं लड़ूंगा आके इलेक्शन, तो तुम कहो अपने भाई को इस्तीफा दे आके इलेक्शन लड़े। तो उस वक्त गंडापुर साहब को बताया गया ये मजाक नहीं करना, पब्लिक अब डिफरेंट मूड में, फजल रहमान का भाई असेंबली में आ जाएगा इस चक्कर में। तो फिर गंडापुर साहब अपने चैलेंज से मुकर गए और उस चैलेंज के ऊपर अब वो खड़े नहीं है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं चाहता हूं इस पर हम थोड़ी सी बात कर लें। फिर 1-2 बैनुल-अक़वामी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। रशिया ने एक बहुत पुराना मुआहिदा जो 38 साल पहले हुआ था उनका अमेरिका के साथ, उसे खत्म किया है। क्यों किया वो बताता हूं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कार्रवाई डाल दी, वो भी आपको मैं बताता हूं। खित्ते के हालात बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से मैं उस तरफ जा नहीं पाया। जो इंडिया के साथ हो रहा है, यूक्रेन और रूस के दरमियान जो हो रहा है, और जो अमेरिका इस वक्त इंटरफेयर कर रहा है इस रीजन की सियासत के अंदर, और पाकिस्तान कहां खड़ा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो इस वक्त चल रहा है। इस पर हम बात करेंगे बाद में। लेकिन आप ये देखें, ख्वाजा आसिफ कहते हैं ब्यूरोक्रेसी पे तनकीद करते हुए, वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टियां ले चुकी है। पुर्तगाल, ये इन्होंने खोला हुआ था, एक स्कीम खोली हुई थी पुर्तगाल ने कि इतने पैसे लाके इन्वेस्ट करो तो वहां पे वीजा मिल जाता था और वहां पे जो है आपको रेजिडेंसी मिल जाती थी। तो इससे फायदा उठाया बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी ने। पैसा इतना ज्यादा नहीं था और ब्यूरोक्रेसी के लिए तो करोड़ों रुपया मामले कोई नहीं होता। तो ख्वाजा आसिफ ने दावा किया, ये वजीर दिफा है पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। और ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारे। बुज़दार का एक करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट, इसे मैं डोरेमोन कहता था। आपको याद होगा मेरे पुराने वीलॉग्स, मैंने डोरेमोन बताया था, एक ब्यूरोक्रेट का नाम जिसने बुज़दार के दौर में तबाही फेरी हुई थी। ये उसी की बात कर रहे हैं। बुज़दार का एक करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपया अपनी बेटियों की शादियों पर सिर्फ सलामियां वसूल कर चुका है। अब 4 अरब की सलामी तो नहीं देता ना कोई 100, 550, 5000, 10,000 इतनी सलामी होती है, सजा क्या होती है? ये तो एक वैसे ही खुशी के लिए एक छोटी सी रकम होती है। अब इसमें 4 अरब तो कोई नहीं देता ना, तो ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का भी एक तरीका है। 4 अरब की सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान को इनका बचा खुचा खाते हैं। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि सियासतदान इनका बचा खुचा खाते हैं। ये ब्यूरोक्रेट इतना ज्यादा खाते हैं कि जो बच जाता है वो सियासतदान खाते हैं और चबले मारते हैं। ना प्लाट, ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीत कर रही है।
اچھا ख्वाजा आसिफ साहब को ये बात मैं बता दूं कि यहां जो मशहूर है ना पाकिस्तान में एक चीज, वो ये है कि जो पाकिस्तान की क्रीम है ना वो एस्टेब्लिशमेंट खा जाती है, उसके बाद जो उसके नीचे बाकी बचा हुआ दूध है वो ब्यूरोक्रेसी पी जाती है, और फिर सियासतदान कहते हैं जो हांडी में लगा हुआ थोड़ा बहुत साइडों पे कुछ बचा कुचा होता है वो हमारे हिस्से में आ जाता है, और सियासतदान फिर मुंह काला कर लेते हैं वो खा के। हालांकि जो सियासतदान है ये इलेक्शन लड़के आते हैं, इनकी पावर सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये पूरी रियासत को चलाने के लिए एक निगरान के तौर पे आते हैं अवाम की जानिब से। इनके पास इख्तियार होता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट को नकेल डालें और सियासतदानों को सीधे रस्ते पे लगाएं। इनके पास ये मैंडेट होता है या इख्तियार होता है कि ये नकेल डालें एस्टेब्लिशमेंट को और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सीधे रस्ते पे लगाएं। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करते हैं और ब्यूरोक्रेसी के पीछे चल जाते हैं उनका बच्चा कुचा खाने के लिए। तो ख्वाजा आसिफ साहब, ये गंद आप लोगों ने मारा है और आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब जब कोई एस्टेब्लिशमेंट के रास्ते में खड़ा हुआ तो आप और आप जैसे लोग सामने आ गए और उन्होंने सहूलतकारी की, जिसके नतीजे में ये ब्यूरोक्रेसी का गंद और एस्टेब्लिशमेंट की गलत रविश आज तक पाकिस्तान में चल रही है। ये सिलसिला रुका नहीं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जिसको नोबेल पीस प्राइज के लिए पाकिस्तान ने नामजद किया, उसकी जानिब से खबर है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया है, और अमेरिकी सदर ने सहाफी की जानिब से सवाल हुआ कि गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे से मुतालिक आप क्या कहेंगे, और कि इनकी हुकूमत की तवज्जो फलस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज्यादा ग़िज़ा पहुंचाने पर है। ट्रंप ने कहा कि बाकी